So this topics we will start and this is just approximate number of hours. यहाँ जो number of hours लिखेंगे approximate है, ये कम हो सकता है, right? We will start with Java topic first to understand, variable data types, right? Those things. Okay. Um, Arrays, loop, function, construct, object-oriented concept, file handling, interface, all the things which comes under core Java part. Then we will go to the Selenium topics, where we will spend a lot of time on understanding how to find the elements, assertion, debugging the problem, creating the framework, right? I'll share the syllabus later on, right? And we will do a live project also. Then we will learn about Cucumber. So Cucumber is like helping on your BDD approach, right? So after once we will complete the whole Selenium part, we will learn Cucumber because that is also too much in demand nowadays. And then we will learn about GitHub and Jenkins. Okay, so that will help you to execute your test case without any human intervention. Okay, so Git we use to store your code, source code, right? Update your source code in a centralized way. And Jenkins is good for creating jobs to execute your code, in automated way again. So that we will understand. The whole cycle is like to create a framework which will be executed without any human intervention, right? So when we say without human intervention, one way is it will execute whenever there is a new build will come, or it will be executed every Sunday, Monday. You can set up the time also that I want to execute my regression test cases every Friday at 2 p.m. You can set it in Jenkins. So those part we will learn. Okay. Now I am directly jumping to a test case. Let's assume the same thing. यही वाला हम केस लेते हैं वापस से और समझते हैं कि इसको ऑटोमेट कैसे किया जाए. ओके. So let's assume this is a simple website test.techlib.in और हमारे स्टेप्स ये हैं कि लॉगिन पे क्लिक करना है, उसके बाद एक यूजर आईडी प्रोवाइड करना है, विच आई एम कंसिडरिंग कि वी विल प्रोवाइड इनवैलिड यूजर नेम. ठीक है, अभी डेमो पर्पस के लिए हम एक इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करने वाले हैं और लॉगिन पे क्लिक करेंगे और ये एरर मैसेज आना चाहिए. तो 5 to 6 स्टेप्स हैं. आपको एक वेबसाइट ओपन करना है, लॉगिन लिंक पे जाना है. So 1 step, 2 step, 3rd step is providing this user ID or email. 4th step is providing this password. 5th step is clicking on this login link and verify this error message has come on. Okay. तो Selenium में काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? अच्छा, एक पार्ट जो छूट गया था वो हम पहले कवर कर लेते हैं कि सेलेनियम क्यों सीख रहे हैं सभी लोग या कंपनीज यूज क्यों करती है ज्यादा, राइट? क्योंकि उसके कुछ बेनिफिट्स हैं. सेलेनियम इज फ्री. फ्री मींस यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू यूज सेलेनियम. ओके, ये ओपन सोर्स है, मतलब आप कस्टमाइज भी कर सकते हो. ओके, सेलेनियम कोड भी प्रोवाइड कर देता है, राइट? तो कुछ कंपनीज हैं जो कस्टमाइज करती हैं और फिर यूज करती हैं. देन देयर इज अ फ्रीडम टू वर्क विथ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. मतलब आप जावा में भी सेलेनियम का कोड लिख सकते हो, पाइथन में भी लिख सकते हो, जावा स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो, सी शार्प में भी लिख सकते हो. तो यहाँ कोई बाइंडिंग नहीं है कि मुझे जावा में ही लिखना पड़ेगा सेलेनियम का कोड. इफ यू आर गुड विथ एनी ऑफ दिस लैंग्वेज you can write your Selenium code. It supports a lot of browser, so
आप क्रोम में भी रन कर सकते हो आपका टेस्ट केस, फायरफॉक्स में भी कर सकते हो, सफारी में भी कर सकते हो, राइट? देर आर डिफरेंट लॉट ऑफ अदर ब्राउजर्स आल्सो विच इट सपोर्ट्स। और कोड आपको एक बार ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि क्रोम के लिए अलग से कोड लिखना पड़ता है, फायरफॉक्स के लिए अलग से कोड लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आपका कोड सेम रहेगा और वो आप अलग अलग ब्राउजर पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। सेम थिंग विथ ऑपरेटिंग सिस्टम, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट। आप विंडोज यूज कर रहे हो तो भी आप कोड लिख सकते हो, लिनक्स यूज कर रहे हो, मैक यूज कर सकते हो, आप कोड कहीं भी लिख सकते हो और कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आपने विंडोज में कोड लिखा है लेकिन आपको रन लिनक्स में करना, ये पॉसिबल है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, ये पॉसिबल है। सो दीज फीचर्स is not available in other automation tools. त्यांना का नाही खायचं मग खातात ते. Right? ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए सेलेनियम एडवांटेज है सेलेनियम यूज करने का। ठीक है, कमिंग बैक टू द यूज केस। ओके, दिस वी हैव टू ऑटोमेट। अब हमें ये समझना है कि ऑटोमेशन अगर करना है तो हमें कुछ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तभी आप उस पर क्लिक कर पाते हो या जो भी एक्शन करना है। देखिए, हमारा स्टेप ये था कि ये ब्राउजर ओपन करना है, ओके, तो कुछ तो कोड होना चाहिए ना ये ब्राउजर ओपन करने का। सेकंड कोड होना चाहिए इस लॉगिन लिंक पे क्लिक करने का। फिर कोड कुछ हमें ऐसा लिखना पड़ेगा जो इस टेक्स्ट बॉक्स को आइडेंटिफाई करे और इसमें ये टाइप कर दे। फिर ये पासवर्ड को आइडेंटिफाई करे टेक्स्ट बॉक्स को और इसमें कुछ पासवर्ड, यू नो दे विल पुट सम पासवर्ड, दिस कोड विल पुट सम पासवर्ड। देन ये लॉगिन बटन को आइडेंटिफाई करो, क्लिक करो। फिर ये एरर मैसेज को आइडेंटिफाई करो और चेक करो कि ये एरर मैसेज है या नहीं। ओके, सो बहुत सारा एफर्ट टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर का इस चीज में जाता है कि उसको आइडेंटिफाई करना है ये एलिमेंट्स, यूनिकली आइडेंटिफाई करना है और उस पर कुछ एक्शंस करने हैं, राइट? तो इसलिए ना बहुत सारे लोकेटर टेक्निक्स हैं। लोकेटर टेक्निक्स सेलेनियम में भी है और इन जनरल भी देर आर लोकेटर टेक्निक्स। तो वो लोकेटर टेक्निक्स क्या है? लेट मी नोट डाउन हियर। You can identify the element through its ID, class name. You can identify it by XPath या फिर link text, right? Tag name, ठीक है। और भी हैं CSS selector। आज मैं पूरी चीजें यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा क्योंकि इट विल टेक टाइम। इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस लोकेटेड टेक्निक्स, इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ये खुद में अपने आप में एक एक चैप्टर है। ओके, बट बेसिक वे में हम समझ सकते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट, ठीक है। तो मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है? ये लॉगिन लिंक आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो आइडेंटिफाई दिस यू कैन राइट क्लिक हियर एंड से इंस्पेक्ट। और किसी भी पेज में कहीं पर भी आप राइट क्लिक करके ना इंस्पेक्ट में जा सकते हो। जब इंस्पेक्ट में जाओगे तो यहाँ एक एरो आइकन है। इफ आई क्लिक हियर एंड प्लेस इट हियर एंड क्लिक इट, इट विल टेल यू कि इसका बैकग्राउंड में कोड क्या है। इसके बैकग्राउंड में कोड ये लिखा हुआ है, ए क्लास इज इक्वल्स टू समथिंग, href इज इक्वल्स टू समथिंग एंड लॉगिन लिंक। तो सेलेनियम में अगर आप कोई लिंक आइडेंटिफाई कर सकते हो विथ इट्स टेक्स्ट, तो उसमें आप कोड लिख सकते हो कि आप फाइंड करो एलिमेंट थ्रू टेक्स्ट और फिर उस पर फिर क्लिक परफॉर्म करो। ओके, ये पॉसिबल है। तो आप नोट डाउन कर लो। ओके, ये मेरा एक स्टेप है जिसमें मुझे लॉगिन पे क्लिक करना है। ओके, आई एम नोटिंग डाउन ऑल ऑफ दिस, लॉगिन एज टेक्स्ट। बट आपको ये भी श्योर करना पड़ेगा कि ये टेक्स्ट जो है ना लॉगिन, ये कहीं और अवेलेबल नहीं है। मतलब एंकर एलिमेंट जिसका टेक्स्ट लॉगिन है इस पेज में कहीं और वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है ये, करेक्ट? तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये लॉगिन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। यू कैन कंट्रोल सी हियर, कंट्रोल F, कंट्रोल V।
तो जब मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि लॉग इन 3 टाइम्स यूज हुआ है, 1 of 3 यहाँ लिखा हुआ है। अगर मैं इसको आगे बढ़ता हूँ तो ये बोल रहा है कि ये सेकेंड ऑकरेंस है इसका। ओके, ये इसका सेकेंड ऑकरेंस है, ये इसका थर्ड ऑकरेंस है, ये इसका फर्स्ट ऑकरेंस है। ये तो कमेंट के अंदर लिखा हुआ है, तो विल नॉट बॉदर अबाउट इट। ये कमेंट है HTML का, तो वो एक एलिमेंट नहीं है। सेकेंड ऑकरेंस इसका यहाँ पर है, जहां पर ये लिस्ट के अंदर है और एक लिंक टेक्स्ट। ओके, थर्ड ऑकरेंस भी इसका सेम ही है, तो आपको टेंशन नहीं है इसमें। इट इज आइडेंटिफाइंग दिस एलिमेंट बाय टेक्स्ट, तो हम बाय टेक्स्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, उसका कोड कैसा लिखना है वो हम बाद में आएंगे, पहले समझते हैं कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं एलिमेंट। वंस यू विल रीच टू दिस पेज, हमको ये टेक्स्ट बॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। ओके, हमको ये टेक्स्ट बॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। सो सेम प्रोसेस, राइट क्लिक कीजिए, बोलिए इंस्पेक्ट हियर एंड click on this arrow icon, reach to this point, and this is input type is equals to text, id is equals to login underscore email। इसका ये मतलब है कि हम इस एलिमेंट को आईडी के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थोड़ा HTML कोड आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला था कि HTML भी सीखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट टैग, टाइप उसका एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की वैल्यू है टेक्स्ट। ये जितने भी चीजें ना, आईडी, क्लास, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। टैग, TAG, टैग इसका इनपुट है। ये इनपुट टैग यूज होता है कोई भी लेट्स से टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए। अगर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा हुआ है मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देगा। सो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इज इक्वल टू लॉगिन ईमेल। अभी लॉगिन अंडरस्कोर ईमेल अगर ये यूनिक है, यहाँ कंट्रोल F कंट्रोल V, इसका ऑकरेंस जो है वो सिर्फ 2 बार आया है यहाँ पर, या 1 of 2 लिखा हुआ है देखो। सेकेंड टाइम जब ये आया है तो कुछ कोड में आया है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मतलब वो बैकएंड के कोड में या क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में कहीं यूज हुआ है, दैट्स फाइन। वो एज एन एलिमेंट ही नहीं यूज हुआ है। एज एन एलिमेंट जो डिस्प्ले हो रहा है वेब पेज में वो यहाँ पर है। अगर आप हॉवर करोगे यहाँ पर तो ये हाईलाइट भी हो जाएगा। ठीक है, सो 1 टाइम आया है। ठीक है, so you can use it. So we will be able to identify this text box through ID. Okay, so ये हमारा ID है आइडेंटिफाई करने के लिए। वैसा ही फिर पासवर्ड है, उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये पासवर्ड का आईडी कुछ लॉगिन अंडरस्कोर पासवर्ड है, या इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड है, राइट। तो एक और तरीका है एक्सपाथ लिखने का, आप आईडी भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। सो एक्सपाथ क्या होता है? एड्रेस होता है। एक्सपाथ इज काइंड ऑफ एड्रेस जो हायरार्किकल वे में इस डॉम हायरार्की में बताता है कि वेयर यू आर, राइट। सो इफ आई राइट क्लिक हियर एंड से कॉपी फुल एक्सपाथ, ठीक है, और मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, so you'll be able to see कि ये ना HTML रूट एलिमेंट से स्टार्ट कर रहा है, देन इट्स सेइंग कि बॉडी में जाओ, स्लैश मींस गो टू द चाइल्ड, then there is a div child, then again there is a div child, then go to the main tag, then div tag, second div tag, then again inside that go to the div tag, then there is a section, first section, div, first div पे जाओ, form पे जाओ, div number 2 पे जाओ, फिर input text box मिलेगा उस पे जाओ। So what it is saying कि if you want to identify this, अगर आप ये XPath यूज करोगे तो भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे एलिमेंट, फाइन। बट ये बहुत ही इट्स वेरी लेंदी फर्स्ट थिंग, और इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। अगर कुछ बीच में नया इंट्रोड्यूस हो गया सेक्शन, राइट, बाद में यूआई डेवलपर्स ने चेंज कर दिया तो आपका कोड नहीं चलेगा। तो एक्सपाथ लिखने के भी ना बहुत सारे तरीके हैं, राइट। So I cannot cover it today. It will take time, but I can make you understand कि आप ये इसको राइट क्लिक करो और यहाँ पर कॉपी आउटर HTML बोलो, यहाँ आ जाओ। तो अभी ये पता है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा है इस टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है। तो आप क्या कोड लिख सकते हो यहाँ पर,
इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यू कैन राइट स्लैश स्लैश input where at the rate id is equals to login password. Very easy, simple. You can say slash slash means anywhere in the page, find the input tag where attribute id value is login password. So this is called XPath, okay, or relative XPath. This is relative XPath, not the absolute XPath. This is absolute XPath. This is relative XPath. So you can use this in your code to identify the password. In the same way, you will identify the login. Once you click on the login, you will be identifying, this element also. तो जितनी भी चीजें आपको वेब पेज में दिखती हैं वो एक पेज एलिमेंट है और आपको उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है. सो अगर आप यूनिकली आइडेंटिफाई प्रॉपरली करते हो तो आपका कोड फिर इजी हो जाता है. आई एम डायरेक्टली जंपिंग टू द कोड and I'll make you explain that how simple it is. Don't worry about why I have written class, import and all, right? Selenium में काम करने के लिए आपके पास जावा होना चाहिए पहले से. आपको कोई ना कोई एक आईडी, इधर एक्लिप्स और इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर आपका कोड स्टार्ट होगा. आपको सेलेनियम को लिंक करना पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट से. वो पार्ट मैं अभी नहीं कवर कर रहा हूँ. मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लिखना ये कोड इट्स नॉट डिफिकल्ट. ओके, सो दिस फर्स्ट लाइन वी आर राइटिंग वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर. ये ब्राउजर ओपन करेगा. ओपन ब्राउजर. आप कोड को आप मतलब अपने कोड में व्हाट यू आर राइटिंग कि मुझे एक ब्राउजर ओपन करना है. ओके, देन उसके बाद ऐसे ही करते हैं ना मैनुअली. क्या करते हैं आप फायरफॉक्स एक्चुअल में ओपन करते हो, राइट? इफ यू वांट टू ओपन इट, और क्रोम अगर आपको ओपन करना है तो आप फायरफॉक्स ओपन करते हो. फिर आप क्या करते हो, आप पर्टिकुलर यूजर आई पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस देते हो कि मुझे अब ये ओपन करना है, करेक्ट? सो वंस यू हैव ड्राइवर हैंडल विथ यू कैन से ड्राइवर डॉट गेट and you can mention which website you want to open. Okay, then once you open this website, you can say finding the element. So this is the way you find the element by different techniques. So by object you are using, but then there are techniques. You want to identify the element by link text. हमने इस बारे में बात की थी कि हम लॉगिन वाले लिंक को एज अ टेक्स्ट, लॉगिन टेक्स्ट, लिंक टेक्स्ट यूज करेंगे और फिर उसके ऊपर फंक्शन है, ये एक्शंस हैं कि आप क्लिक उस you want to perform click on it, right? In the same way, you can identify the element by ID and then can say send keys. So send keys एक function है जो कि टाइप कर देगा, right? मशीन खुद टाइप कर देगी ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी. देन आप पासवर्ड वाला टेक्स्ट फील्ड आइडेंटिफाई कर रहे हो. we talked about it recently कि हम XPath लिख सकते हैं. So by XPath we are doing it. फिर एक CSS सेलेक्टर भी एक टेक्निक होती है. We'll talk about it later on, but I just want to show you that you can identify through tag and then combination of attribute. So we are saying find an element जिसका tag name button है, उसका type attribute का value submit है and click on it. That's it. इतना करने के बाद अगर आप ये execute करेंगे तो विल से रन एज testng टेस्ट. अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ ऑटोमेटेड वे में ओपन होने वाला है एंड इट विल बी वेरी फास्ट. It is showing me something. Okay, no problem. Just give me 1 minute. हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं अब फिर से and you will see it's happening through automated code. I am not touching my screen here or the keyboard. Done. It has put abcd@test.com, some password and clicked on the login. This error message has come. तो ये बहुत फास्ट हो गया. मैनुअली हो सकता है इसको करने में 2 मिनट लगते हैं या 1 मिनट लगते हैं, बट ऑटोमेटेड वे में जस्ट लाइक 10 सेकेंड्स में सब कुछ हो गया,
right? It's very fast. So this is how automated code works. And ये इतना करना तो इजी है, राइट? लेकिन फिर आपको प्रॉपरली फ्रेमवर्क डिजाइन करने आना चाहिए, राइट? बहुत सारी चीजें जो सीखने की है इसमें। आप क्लासेस कैसे लिखते हैं, इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं डिफरेंट पेज ऑब्जेक्ट्स को, राइट? डिफरेंट पेज एलिमेंट्स को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो आप आइडेंटिफाई करना, एलिमेंट उस पे काम करना, ये आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं, लेकिन रियल वर्क विल स्टार्ट आफ्टर इट, to create the framework, understand some other framework which is written by someone else, right? Cucumber, GitHub, Jenkins, वो सब चीजें जब आप as a whole सीखेंगे, then only you will say that you will become a better test engineer. Okay, that's it for today. If you have any question, you can now ask it.